So let me just introduce the Raj Lakshmi Solutions Private Limited first, and then let's move ahead with the webinar session. So basically, Raj Lakshmi Solutions is into software as well as services. And initially, it starts from Tally Prime, like an accounting software, and we are also part of SAP Business One, a key for every business solution. And we are part of Bittrex 24, which is a customer relationship management software. And we are into Skill India, the government project, which is specifically concerned for the education and employment of children or students. Well, and apart from this, we are into HR services, wherein we like help the organizations for the support of recruitment, or we provide training and development like process, procedures, systems, as well as strategies. And we are also part of digital marketing. I'm sorry, wherein we create the accounts, like all the digital media accounts to reach, to give a reach in the market and to show market that you are actively working. So this has really become a boom, or as in the peak as of now. Like people are working from home, people are working from different scenarios and showing the market that they are actually working. So I think this is the very good platform which will really support you to just go ahead with certain good strategies. Well, apart from this, we are into we are giving so many offers. And Ms. Madhvi and Ms. Manali. So Ms. Madhvi, are you here? Yes, ma'am, I'm here. Hi Madhvi, welcome to the webinar. And Ms. Manali, are you here? Yes, ma'am. Hello. Hi, Ms. Manali. Thank you for joining us. And we have a special speaker here, resource person, that is Mr. Bhagwati. So Mr. Bhagwati, are you here? Yeah. Hi, good afternoon, Deepa. Hi, Mr. Bhagwati. Good afternoon. Thank you so much for joining. Well, the most important thing is there are few instructions here. That is, firstly, this webinar is getting recorded. Request you to please follow us onto the social media channels, wherein you can find this particular webinar by couple of days. And the next thing is, request you to please respect the speaker and give the space here. Once we are done with the webinar, you can just update your questions in the comment box, or else you can raise your hands. We will give you the privacy wherein you can connect directly with us onto the call. And the next important thing is, our details have been already forwarded into the chat box. So request you to please click now itself and save the numbers now itself, because once you are done with the call, you will not be able to connect this particular chat box. So I think the instructions are done here, and I didn't talk about the services. Basically, we are after sales, we are into support, and we are into implementation, we are into customization, and we are into advisory. So advisory is nothing but we stabilize the organization if there is interrupted or any distracted scenario and situation. Yes. So now it is the part of the webinar, I guess. Let me not take much of your time. So directly let us get into the webinar. So it's over to you, Mrs. Madhvi and Ms. Manali. Request you to introduce yourself and start with the webinar. It's over to you guys. Yes, ma'am. Good evening, everyone. Myself, Madhvi from Raj Lakshmi Solution Private Limited. Here is the family of Raj Lakshmi Solution. Today I will give presentation of e-way bill with Tally Prime. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड रिलीज के बारे में, दैट इज 2.0, जो अब इनहेंस होने वाला है Tally Prime में. नेक्स्ट स्लाइड में हम ओवरव्यू देखेंगे ई-वे बिल का. पार्ट 1, ई-वे बिल डोमेन. ई-वे बिल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स. ई-वे बिल प्रोसेस एंड ओवरव्यू. Process to generate e-way bill via portal. Generate e-way bill from Tally Prime. जब गुड्स का वन प्लेस और स्टेट से दूसरे प्लेस और स्टेट में मूवमेंट होता है, तब हम ई-वे बिल जनरेट करते हैं. ई-वे बिल जनरेट करने का प्रोसेस बहुत इजी है, जिसे हम पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं. हम ई-वे बिल इजीली जनरेट कर सकते हैं थ्रू Tally Prime.
Part second, product walkthrough. E-way bill now way easier, connected, complete and compliant. Powerful reports, easy to personalize and easy to access. E-way bill पहले से ज़्यादा easier हो गया है with the help of new changes in e-way bill. आप अपने हिसाब से e-way bill easily access कर सकते हैं, personalize and experience कर सकते हो. Now we move to the next slide and see e-way bill domain. वैसे पहले हमें ओनली ई-वे बिल जनरेट करने से टैक्स इनवॉइस मिलता था. नाउ इन न्यू रिलीज ऑफ टैली प्राइम 2.0 में आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि आप टैक्स इनवॉइस के साथ ई-वे बिल जनरेट होके मिलेगा, जिसमें स्पेसिफिक बारकोड होगा. वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी. हम देखेंगे ई-वे बिल में मूवमेंट ऑफ गुड्स का प्रोसेस कैसे होता है. इफ गुड्स का मूवमेंट इंटरस्टेट में होता है तो हमें ई-वे बिल जनरेट करना होगा, जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए. हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होगा. स्टेप 1, अपलोड शिपमेंट डिटेल्स. टैली प्राइम के थ्रू हमें डिटेल्स अपलोड करने हैं. हम बिल जनरेट करेंगे जिसमें हमें स्पेसिफिक ई-वे बिल नंबर जनरेट होगा. स्टेप 2, give e-way bill details along with an invoice copy to the transporter driver. हमें e-way bill डिटेल्स की इनवॉइस कॉपी के साथ जो आपके ट्रांसपोर्टर होंगे उनको दिया जाएगा. स्टेप 3, टैक्स ऑफिशियल वेरीफाई e-way bill डिटेल्स एट द चेक पोस्ट. चेक पोस्ट पर टैक्स ऑफिसर e-way bill की डिटेल्स वेरीफाई करेंगे. एंड स्टेप 4, vehicle leaves the check post after verification. After verification of e-way bill, tax officer को आगे प्रोसीड करेंगे. In Maharashtra, also for intrastate, it is applicable. It notified by the state. For example, movement of goods within Maharashtra, the threshold limit is defined as 1 lakh. Now, in next slide, we see reliable solution of e-way bill. Reliable e-way bill solution, connected. The product directly communicates with the NIC portal, which means that you can complete all e-way bill activities from within the product without needing to go out anytime. आपका जो प्रोडक्ट है वह डायरेक्टली NIC पोर्टल से लिंक होता है. दैट मीन आप ई-वे बिल की सारी एक्टिविटीज प्रोडक्ट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट नीडिंग टू गो आउट एनी टाइम. कंप्लाइंट. टैली प्राइम इज एंड विल ऑलवेज बी फुल्ली कंप्लाइंट विद द ई-वे बिल रेगुलेशन एज वेल एज द रिक्वायरमेंट ऑफ NIC पोर्टल. टैली प्राइम में ई-वे बिल जनरेट करना इजी है, जो NIC पोर्टल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्किंग करता है. थर्ड, कंप्लीट. We understand that while managing e-way bills, you may be faced with a device's set of challenges. The product completely adapts to all such cases in the entire life cycle of e-way bill, giving you complete peace of mind. हम समझ सकते हैं that e-way bill मैनेज करने में हमें different challenges फेस करने होते हैं, but now the help of new release 2.0 इन टैली प्राइम ये सारी चैलेंजेस को इजी हो जाएंगे हमें वर्किंग के लिए. सो दिस इज वाज अबाउट न्यू 2.0 रिलीज इन टैली प्राइम. इट एंड फ्रॉम माय साइड आई रिक्वेस्ट टू मिस मनाली मैम टू प्रोसीड फर्दर. थैंक यू. Yes, thank you so much, Madhvi, for explaining this theoretical part very well. So now it's time to see the live demonstration of e-way bill from Tally Prime. So first of all, hello everyone, good evening to all. Myself Manali Sawant, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So now I think all are excited to know how e-way bill directly generated on portal and what are the prerequisites to generate e-way bill directly from Tally Prime. So let's start now. Before starting, मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगी हमारे
प्रीवियस प्रोसेस के रिगार्डिंग। लाइक हम लोग ई वे बिल जो है पहले से बनाते आ रहे हैं, हम लोग ने ERP में भी जनरेट किया था, टैली प्राइम से भी हम लोग जनरेट कर रहे थे, और इवन हम लोग ने अभी लास्ट टू लास्ट सेशन भी ई वे बिल के रिगार्डिंग लिया था, जिसमें कंप्लीट डेमो हम लोग ने दिखाया था आपको कि ई वे बिल का कॉन्फ़िगरेशन हमें किस तरह करना है, और टैली प्राइम से जो JSON फाइल जनरेट होती है ई वे बिल के लिए, उसे हमें पोर्टल पे मैन्युअली कैसे अपलोड करना है, ये कंप्लीट प्रोसेस हम लोग ने हमारे लास्ट टू लास्ट सेशन में दिखाया था। तो अभी आप सोचोगे कि आज के ये सेशन में हम लोग न्यू क्या देखने वाले हैं। तो जो प्रोसेस हम लोग प्रीवियस करते आ रहे थे वो कंप्लीट मैनुअल प्रोसेस था। लाइक हमें पहले एंट्री पास करनी पड़ती थी, जो कंप्लीट डिटेल्स है वो मैनुअली हमें फीडअप करने पड़ रहे थे वहाँ पे। देन एक फाइल जनरेट होती थी टैली से, वो फाइल हम लोग पोर्टल पे लॉगिन करके उसे वहाँ पे अपलोड कर रहे थे। बट अपलोड करने के बाद भी समटाइम्स कुछ ना कुछ एरर्स वहाँ पे हमें शो करते थे, देन वो रेक्टिफाई करना पड़ता था हमें अगेन टैली में आके, फिर हम लोग न्यू फाइल जनरेट करके उसे अगेन पोर्टल पे अपलोड कर रहे थे। सो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टाइम था, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था। बट अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि हमारा जो ई वे बिल है क्यों नहीं अगर अपने टैली से डायरेक्टली पोर्टल पे अगर अपलोड हो जाएगा। यस, साउंड गुड एंड इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी, हम लोग देखेंगे हमारे टैली प्राइम 2.0 से हम लोग ई वे बिल ऑटोमेटिकली पोर्टल पे कैसे अपलोड करेंगे। सो फर्स्ट आई विल शेयर माई स्क्रीन हियर। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें जो ई वे बिल का जो प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस करने से पहले हमें कौन से प्री रिक्विजिट्स करने रहेंगे। यानी कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि टैली से हमारा ई वे बिल डायरेक्टली जनरेट होने वाला है ई वे बिल के पोर्टल पे। सो टैली को हमें ई वे बिल पोर्टल से लिंक करना होगा। आफ्टर दैट सर्टन API यूजर हमें जनरेट करने होंगे, तो वो उसे कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स के साथ हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सी, अभी जस्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट इज रजिस्टर ऑन ई वे बिल पोर्टल यूजिंग योर GSTN। यहाँ पे हम लोग स्टेप 1 से देखेंगे, लाइक जो भी अभी तक ई वे बिल पोर्टल पे रजिस्टर नहीं हुए हैं, जो कम्प्लीटली न्यू सप्लायर है जिन्होंने अभी तक ई वे बिल प्रोसेस नहीं किया है, उनको ई वे बिल के पोर्टल पे रजिस्टर कैसे होना है वो फर्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू चूज द टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज योर GSP, यानी कि सुविधा प्रोवाइडर हमें बनाना है टैली को थ्रू पोर्टल। एंड द लास्ट वन, यू हैव टू क्रिएट एन API यूजर विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये API हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, तो जब भी हम लोग टैली से प्रोसेस करेंगे उस टाइम पे हमें कुछ ई वे बिल लॉगिन पूछेगा, तो वहाँ पे ये API क्रेडेंशियल हमें यूज होगा। सो चलते हैं हम लोग आगे, हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ई वे बिल पोर्टल के लिए। सो जैसे ही आप गूगल ब्राउजर ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको पोर्टल पे लिंक डालना होगा, लाइक eWaybill.nic.in। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। अंडर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन ई वे बिल रजिस्ट्रेशन। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको जो भी आपका कंपनी का रजिस्टर्ड GSTN नंबर है उसे यहाँ पे फिलअप करना होगा। देन नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है उसे हमें एंटर करके गो बटन पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आप देखोगे ये स्क्रीन पे पर्टिकुलर वो GST नंबर के साथ आपकी जो भी कंपनी डिटेल्स रहेंगे वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शोन हो जाएंगे, लाइक आपका रजिस्टर मेल ID, रजिस्टर मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारे डिटेल्स वो पर्टिकुलर GST नंबर के साथ जो कनेक्टेड है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देन नेक्स्ट हमें क्लिक करना होगा सेंड OTP ऑप्शन पे। तो जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा उस पे आपका OTP आ जाएगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई OTP। वेरीफाई OTP करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप ई वे बिल पोर्टल के लिए रजिस्टर्ड हो गए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हमें यूजर ID एंड पासवर्ड जनरेट करना होगा। दिस ID एंड पासवर्ड हमारे ई वे बिल पोर्टल के लॉगिन के लिए रहेगा। ध्यान रखिए ये जो लॉगिन है हम लोग ई वे बिल पोर्टल के लिए बना रहे हैं। ओके, सो जो भी यूजर एंड पासवर्ड आपको स्पेसिफिक लगता है उसके हिसाब से आप बना के सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ई वे बिल पोर्टल का लॉगिन जनरेट हो जाएगा। ये प्रोसेस के बाद आप इजीली आपका ई वे बिल पोर्टल लॉगिन कर सकते हो। और आगे अभी हम लोग देखेंगे आफ्टर लॉगिन हमें GSP एंड API यूजर कैसे क्रिएट करना होगा। तो वापस हम लोग पोर्टल पे आके लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका जो भी यूजर नेम पासवर्ड अभी हम लोग ने जनरेट किया उसे यूज करके आपको लॉगिन करना है।
आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन होम बटन. होम बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिलेगा. अंडर दैट यू हैव टू सिलेक्ट फॉर GSP. जैसे ही आप GSP बटन पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आपको यहाँ पे पॉपअप होगी. जो आपका रजिस्टर मेल ID एंड मोबाइल नंबर आपने दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो आपको शो करेगा. देन नेक्स्ट अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सेंड OTP एंड जो भी OTP आएगा वो आप यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करोगे. वेरीफाई करने के बाद आपको ये स्क्रीन यहाँ पे पॉपअप होगी. तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा ऐड न्यू. आफ्टर दैट हमें हमारा GSP सिलेक्ट करना है. जैसे मैंने आपको बताया था कि टैली को हमें लिंक करना है पोर्टल के साथ, तो योर GSP विल बी टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. आफ्टर GSP हमें हमारा यूजर नेम क्रिएट करना है. तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमें कुछ असाइन हुआ है ऑलरेडी API यूजर which is the combination of your company name and GSTN. आपके कंपनी नेम एंड GST नंबर का कॉम्बिनेशन करके हमें ऑलरेडी एक API यूजर असाइन किया है. बट आगे अगर आप देखोगे तो सफिक्स के लिए हमें 3 कैरेक्टर्स डालने हैं. तो आपको सिर्फ उतने ही 3 कैरेक्टर डाल के आगे प्रोसीड करना होगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग 3 कैरेक्टर्स ऐड कर देते हैं. 3 कैरेक्टर्स ऐड करने के बाद नीचे हम लोग 15 कैरेक्टर्स का हमारा पासवर्ड जनरेट करके ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. सो ये हो गया हमारा API यूजर ID क्रिएशन, जो हम लोग टैली प्राइम में यूज करेंगे जब भी हमें eWaybill पोर्टल का लॉगिन करना होगा. ओके, सो ये प्रोसेस थी हमारी पोर्टल के थ्रू. अभी तक हम लोग ने देखा रजिस्ट्रेशन अगर कैसे करना है. जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं eWaybill के पोर्टल पे उनके लिए ये प्रोसेस था. देन हम लोग ने GSP सिलेक्ट किया और हमारा API हम लोग ने क्रिएट कर दिया. तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ. दैट इज हमारा जो टैली प्राइम 2.0 का जो न्यू वर्जन है उसमें से हमें सेल एंट्री हमारा जो रहेगा वो हम लोग डायरेक्टली eWaybill के पोर्टल पे कैसे अपलोड करेंगे वो हम लोग देखेंगे. सो यहाँ पे और एक जस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी. लाइक अभी हमारे यहाँ पे तो eWaybill का कोई लाइव रजिस्ट्रेशन नहीं है अवेलेबल. सो विद द हेल्प ऑफ वीडियो हम लोग ने ट्राई किया है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए. सो वो वीडियो में जस्ट अभी प्ले करूंगी तो हम लोग देखते हैं कि हमें जो eWaybill है पोर्टल पे अपलोड कैसे करना होगा. सो आई विल शेयर माय नेक्स्ट स्क्रीन हियर. इज इट विजिबल? Yes, it's visible, Manali. You can play ahead. ओके, थैंक यू. सो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा सेल वाउचर मैंने ओपन किया है. नेक्स्ट जो सेल बिल हम लोग एज इट इज पास करते आ रहे हैं वैसे ही सेम आपको क्रिएट करना होगा. लाइक फर्स्ट पार्टी सिलेक्ट करोगे, सेल्स लेजर सिलेक्ट करना है. देन आपका जो भी इन्वेंट्री पार्ट है, मटेरियल, क्वांटिटी, रेट, ये सारी चीजें आपको फिलअप करनी होंगी. एंड नेक्स्ट जो भी अपना टैक्स रहता है CGST, SGST, IGST वो डाल के हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा मेन ऑप्शन दैट इज प्रोवाइड GST और eWaybill डिटेल्स. तो ये ऑप्शन को आपको येस करना रहेगा. इसे येस करते ही आपको यहाँ पे ये एक विंडो शो करेगी जो हमें प्रीवियसली भी शो करती थी eWaybill के डिटेल्स के लिए. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सेम विंडो हमें पहले भी अवेलेबल थी वही सेम विंडो हमें यहाँ पे दिख रही है. बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें कुछ बाइफर्केशन मिल रहा है दैट इज फॉर पार्ट B डिटेल्स. तो ऐसे क्यों? eWaybill जो है हम लोग 2 पार्ट में जनरेट करते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B. प्रीवियसली हम लोग जब भी टैली से eWaybill जनरेट करते थे तो उस टाइम पे हमें मैंडेटरी सारे जो भी ऑप्शंस दिए हैं सब इन्फॉर्मेशन हमें फिलअप करनी पड़ती थी. उसमें से अगर कुछ भी आपका मिसिंग है या फिर इनवैलिड है तो आपका eWaybill जनरेट नहीं हो रहा था. बट फॉर एग्जाम्पल किसी सप्लायर को ओनली पार्ट A के लिए ही eWaybill बनाना है, पार्ट B का जो eWaybill है वो उनके ट्रांसपोर्टर अगर जनरेट करने वाले रहेंगे तो वो सिनारियो अभी आप टैली प्राइम 2.0 से कर सकते हो. यानी कि पार्ट B अगर आप ब्लैंक रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, eWaybill आपका इजीली अपलोड हो जाएगा. सो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं जो डिटेल्स है दैट इज डिस्पैच फ्रॉम, शिप टू, ये डिटेल्स प्रॉपर फिलअप करने हैं. डिस्टेंस डालना है पिन टू पिन, ट्रांसपोर्टर नेम, ट्रांसपोर्टर ID. आफ्टर दैट आता है हमारा मोड. तो जो भी पर्टिकुलर मोड के थ्रू आप आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो पर्टिकुलर मोड आपको सिलेक्ट करना होगा. फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अभी यहाँ पे रोड सिलेक्ट किया है. देन हमारा कंपलसरी यहाँ पे व्हीकल नंबर डालना है हमें. आफ्टर दैट हम लोग आते हैं यहाँ पे व्हीकल टाइप के ऊपर. तो आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियसली हमें यहाँ पे ओनली रेगुलर का ही ऑप्शन अवेलेबल था. जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है दैट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था. सो अभी अगर किसी के पर्टिकुलर गुड्स बड़े बड़े कार्गो या फिर बड़े बड़े ट्रक से अगर जा रहे हैं तो उस टाइम पे अगर ऐसा कोई व्हीकल टाइप है तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हो. अदरवाइज रेगुलर के साथ सिलेक्ट करके कंटिन्यू करोगे.
और ये 2 ऑप्शन के अलावा भी अगर कोई न्यू व्हीकल टाइप रहेगा तो न्यू व्हीकल टाइप पे क्लिक करके आप उसे ऐड कर सकते हो। सो फिलहाल हम लोग सिलेक्ट करेंगे रेगुलर। ये सारे डिटेल्स फिलअप हो गए हमारे। अभी हम लोग एंट्री सेव करने जा रहे हैं। तो एंट्री सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे हमें पॉपअप दे रहा है यस, यानी कि आपने जितने भी अभी तक डिटेल्स डाले हैं सारे प्रॉपर फिलअप किए हैं, वैलिड है। इसके लिए आपको नेक्स्ट मैसेज आ रहा है, दैट इज डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई-वे बिल जनरेशन। तो आप यहाँ पे यस करोगे तो ये पर्टिकुलर ई-वे बिल आपका पोर्टल पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक सिनारियो में बताना चाहूंगी, लाइक अगर आप चाहते हो कि मुझे सिंगल ई-वे बिल जनरेट नहीं करना है, पर्टिकुलर पार्टी का बल्क में जनरेट करने हैं बिल्स मुझे, या फिर कंसोलिडेटेड बिल बनाना है, तो वो केस में हमें कैसे करना है। तो जब भी आप सिंगल बिल बनाओगे आप और आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन आएगा येस और नो के लिए, तो उस टाइम पे आपको येस नहीं करना है, आप प्रेस करोगे नो। तो आपका जो भी इंडिविजुअल इनवॉइसेस है वो पर्टिकुलर पार्टी के लिए वो सारे पेंडिंग में शो हो जाएंगे और उसे आप बल्क में एक साथ अपलोड कर सकते हो। सो बल्क में भी कैसे जनरेट करना है वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग सिंगल बिल के साथ जाते हैं। सो हम लोग क्लिक करेंगे येस बटन पे। जैसे ही हम लोग ने येस किया तो यहाँ पे आपको ई-वे बिल लॉगिन पूछ रहा है। तो ये कौन सा लॉगिन आईडी पासवर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हम लोग ने पोर्टल पे एज ए API यूजर क्रिएट किया था, वही सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल के आपको प्रोसीड करना होगा। ओके, सो जैसे ही आप पासवर्ड और यूजर नेम प्रॉपर एंटर करोगे तो आपका ई-वे बिल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हो आपका ई-वे बिल पोर्टल पे जनरेट हो रहा है। और एक अभी ये आईडी पासवर्ड के साथ मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो आईडी पासवर्ड हम लोग डाल रहे हैं वो सेव रहेगा या फिर हमें ईच एंड एवरी एंट्री के टाइम पे वो पासवर्ड आईडी डालना पड़ेगा। और अगर सपोज मेरे मल्टी यूजर है तो ईच एंड एवरी यूजर के लिए ये सिनारियो कैसे रहेगा, तो वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपको। लाइक ये जो आईडी पासवर्ड है वो 6 आवर्स के लिए सेव रहेगा टैली में, जब तक टैली प्राइम इसको क्विट नहीं करता है। एंड नेक्स्ट सिनारियो इसका ये रहेगा, अगर आप मल्टी यूजर क्लाइंट हो और सपोज आपने आपके डेटा में आईडी पासवर्ड नहीं दिया है, यानी कि सिक्योरिटी मेंटेन नहीं किए हैं, डेटा आपका कंप्लीट ओपन है, तो सपोज मॉर्निंग में आके आपके फर्स्ट यूजर ने एक सेल बिल बना दिया और उन्होंने ई-वे बिल भी उसका जनरेट कर दिया विद आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करके, और आफ्टर दैट आपका जो सेकंड यूजर है वो नेक्स्ट बिल बनाने के लिए जा रहे हैं, तो उनको वहां पे वापस अगेन आईडी पासवर्ड नहीं पूछेगा। वो जो ई-वे बिल है डायरेक्टली पोर्टल पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। एंड द सेकंड सिनारियो इसमें ये रहेगा, अगर इन केस आपके आईडी पासवर्ड आपने दिया हुआ है, डेटा को सिक्योरिटी मेंशन की है, तो ईच एंड एवरी यूजर जब भी लॉगिन करेंगे और फर्स्ट बिल बनाएंगे तो उनको फर्स्ट टाइम पे वो API यूजर आईडी एंड पासवर्ड वहाँ पे कंपलसरी मेंशन करना होगा, और बाद में वो 6 आवर्स के लिए तो सेव रहेगा जब तक टैली प्राइम कोई क्विट नहीं करता। ओके, सो ये क्वेश्चन माइंड में आ सकता है, तो उसको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ई-वे बिल है पोर्टल पे ऑटोमेटिकली सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग हमारे इनवॉइस के प्रीव्यू की तरफ। अभी यहाँ पे हम लोग लाइक जैसे PPT में बताया हमें माधवी मैम ने कि आपको टैक्स इनवॉइस के साथ साथ और एक कॉपी भी अवेलेबल होने वाली है। लाइक प्रीवियसली हम लोग कोई भी टैक्स इनवॉइस प्रिंट करते थे तो ओनली टैक्स इनवॉइस हमें मिलता था विद ई-वे बिल नंबर। ओके, और उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट क्या रहती थी कि टैक्स इनवॉइस के साथ साथ ट्रांसपोर्टर को हमें ई-वे बिल की भी कॉपी देनी पड़ती थी। तो वो केस में हम लोग क्या करते थे, ई-वे बिल पोर्टल लॉगिन करते थे, वो ई-वे बिल नंबर वहाँ पे पेस्ट करते थे, फिर उससे प्रिंट निकाल के हम लोग दे देते। अगेन वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो अभी टैली से हमें क्या ऑप्शन मिलने वाला है, लाइक आप जब भी इनवॉइस प्रिंट करोगे तो आपको एक टैक्स इनवॉइस की कॉपी मिलेगी विद ई-वे बिल नंबर, एंड सेकेंड वन मैं बताऊंगी नहीं, हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। सो प्रीव्यू ऑन किया अभी हम लोग ने, यहाँ पे ये आ गया आपका टैक्स इनवॉइस विद ई-वे बिल नंबर, and your next copy will be yes your ई-वे बिल की कॉपी भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रही है विद पर्टिकुलर बारकोड। जो कॉपी हम लोग को पोर्टल से जनरेट करनी पड़ती थी, पोर्टल से प्रिंट करने की जरूरत पड़ती थी, वो अभी आपको विद इन टैली अवेलेबल हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। पार्ट ए के डिटेल्स दिए हैं, पार्टी डिटेल्स मिल रहे हैं, गुड्स के डिटेल्स है, HSN मिल रहा है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, एंड नेक्स्ट वन इज योर पार्ट बी लाइक ट्रांसपोर्टर के डिटेल्स, व्हीकल के डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे वन पेज पे अवेलेबल हो रही है। सो विद इन द प्रोडक्ट आप कंप्लीट ई-वे बिल का प्रोसेस कर सकते हो। आई थिंक बहुत ही इजी प्रोसेस हमें टैली प्राइम ने प्रोवाइड की है। ओके, सो ये कंप्लीट हम लोग ने अभी देखा सिंगल बिल जनरेशन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग बल्क के लिए भी प्रोसेस कर सकते हैं।
तो उसे कैसे हम लोग करेंगे वो अभी मैं दिखाऊंगी। अभी तक हम लोग वीडियो के थ्रू जा रहे थे, अभी मैं आपको, हमारे पास 2.0 का बीटा वर्जन अवेलेबल है, सो उसमें से मैं आपको बताऊंगी कि हमें बल्क में ई वे बिल कैसे जनरेट करना है। सो आई विल शेयर माय नेक्स्ट स्क्रीन। इज इट विजिबल? Yes. ओके सर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने रजिस्ट्रेशन देख लिए, एपीआई क्रिएशन देख लिया हम लोग ने, उसके बाद सिंगल बिल जनरेट करके देखा, पोर्टल पे अपलोड होने के बाद हमें हमारा प्रिंट प्रीव्यू कैसे मिलेगा वो भी हम लोग ने देख लिया। तो अभी देखते हैं हम लोग कि बल्क में हमें अगर इनवॉइसेस जनरेट करने हैं तो उसे हम लोग कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने प्रीवियसली कुछ ऑलरेडी सेल बिल पास करके रखे हैं, क्योंकि हमें बल्क में जनरेट करना है तो उसके लिए मुझे प्रीवियस में एंट्रीज पास करनी पड़ी। ओके, सो बल्क जनरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ऊपर टॉप में आपको ऑप्शन दिख रहा है दैट इज एक्सचेंज। जैसे ही आप एक्सचेंज बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड फॉर ई वे बिल। सेंड फॉर ई वे बिल करते ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा पेंडिंग फॉर ई वे बिल जनरेशन दैट इज 2, यानी कि अभी तक मैंने ये 2 बिल का ई वे बिल जनरेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मुझे वो सिंगल पार्टी है तो सिंगल पार्टी का मुझे बल्क में देना था, इसके लिए मैंने एंट्री लेवल के टाइम पे उसे जनरेट नहीं किया था, तो मैं उसे बल्क में जनरेट करना चाहूंगी। तो आप यहाँ पे उसे वेरीफाई करके डायरेक्टली सेंड बटन पे क्लिक करोगे। जैसे सेंड बटन पे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, कंफर्मेशन मिलेगा कि 2 इनवॉइस आप बल्क में जनरेट कर रहे हो, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप यस करोगे तो यहाँ पे जो भी नॉर्मल ई वे बिल का लॉगिन एपीआई यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा उसे आपको एंटर करके आगे प्रोसीड करना होगा। ओके, सो इससे आपका जो ई वे बिल है वो बल्क में जनरेट हो जाएगा, आपके डेटा में जनरेट हो जाएगा और इवन पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट सिनेरियो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी ई वे बिल के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं, लाइक हम लोग कभी एंट्री पास कर रहे हैं तो डेटा एंट्री मिस्टेक आ सकते हैं, लाइक पार्टी का जीएसटी नंबर रॉन्ग हो गया या फिर क्वांटिटी में कुछ मिसमैच आ गया, एचएसएन रॉन्ग हो गया और हम लोग ने वैसे ही ई वे बिल पोर्टल पे अपलोड कर दिया और बाद में पता चला कि हमारी मिस्टेक हुई है। तो वो केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैली से वो एंट्री पर्टिकुलर अल्टर कर सकते हैं, बट हमारा ई वे बिल अल्टर नहीं हो रहा था। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, पोर्टल लॉगिन करके ई वे बिल को कैंसिल कर रहे थे पोर्टल से। बट अभी आपको पोर्टल खोलने की जरूरत ही नहीं है, टैली प्राइम से ही आप उसे कैंसिल कर सकते हो और डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो ई वे बिल के पोर्टल पे। तो उसे कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे जाएंगे गो टू ऑप्शन पे जो हमें ऊपर मिल रहा है। गो टू बटन पे क्लिक करते ही हम लोग जाएंगे ई वे बिल रिपोर्ट में। ई वे बिल रिपोर्ट में आते ही मैं यहाँ पे पर्टिकुलर पीडीएफ सिलेक्ट करूंगी, तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर ई वे बिल का रिपोर्ट्स अवेलेबल हो रहा है। अगर इन केस कोई भी एंट्री आपकी मिसमैच में गई है, कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप नहीं किया है, तो ऐसी कौन सी एंट्री मेरी मिसमैच में है, उसका रीजन क्या है, वो आप यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में देख सकते हो। वहाँ पे आपको कंप्लीट रीजन अवेलेबल हो जाएगा और वहाँ से आप रेक्टिफाई करके न्यू ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। देन हाउ मच इनवॉइसेस इज पेंडिंग वो भी आप चेक कर सकते हो। देन उसमें से आपने ओवरऑल टोटल कैंसिल इनवॉइसेस कितने हैं वो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। देन टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस आपने विद पार्ट बी एंड विदाउट पार्ट बी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एंट्री लेवल पे ही, आप विद पार्ट बी एंड विदाउट पार्ट बी दोनों सिनारियो में ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। तो उसका भी बाइफरकेशन आपको अवेलेबल होगा कि कितने इनवॉइसेस आपने पार्ट बी के साथ बनाया है और कितने विदाउट पार्ट बी से। सो चलिए अभी हम लोग हमारे मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, लाइक जो हमें ई वे बिल कैंसिल करना है। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी जनरेटेड बिल्स पे। सो इसमें से मुझे ये जो लास्ट बिल जो है मेरा उसे कैंसिल करना है। तो आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं मल्टीपल्स। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट जाऊंगी कैंसिल ई वे बिल के ऊपर। जैसे ही हम लोग कैंसिल ई वे बिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीजन आएगा। सो जो भी मैंडेटरी रीजन आपको, मतलब आपने जिस रीजन की वजह से वो कैंसिल कर रहे हो वो पर्टिकुलर रीजन सिलेक्ट करना होगा। अगर डुप्लीकेट है, डेटा एंट्री मिस्टेक है, तो वो सिलेक्ट करके आप आगे रिमार्क्स में मेंशन करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो हम लोग सेम यहाँ पे डाल देते हैं एज इट इज और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करते ही आप देखोगे वो एंट्री मेरी यहाँ से तो रिमूव हो गई, यानी कि डेटाबेस में से मैंने तो वो ई वे बिल कैंसिल कर दिया। लेकिन अभी पोर्टल से कैंसिल हुआ है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, या फिर वहाँ पे कैंसिल कैसे करना है। तो अगेन वहाँ पे लॉगिन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, विद इन टैली से आप डायरेक्टली उसे कैंसिल कर सकते हो। अगेन आपको जाना है एक्सचेंज मेन्यू के ऊपर।
देन सेंड फॉर ई वे बिल, यहाँ पे वो पर्टिकुलर पीरियड सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पे देखोगे कि कैंसिलेशन के लिए बिल्स जो मेरे पास अवेलेबल थे वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। पर्टिकुलर ये लास्ट इनवॉइस मैंने कैंसिल किया था जो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, और ओवरऑल मैंने अभी तक 3 इनवॉइसेस कैंसिल किए थे जो मुझे अभी पोर्टल से भी कैंसिल करने हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट करके सेंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे अगेन आपको कंफर्मेशन आएगा कि 3 ई-वे बिल आप कैंसिल कर रहे हो और उसे पोर्टल पे अपडेट दे रहे हो। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही आप येस क्लिक करोगे, अगेन यहाँ पे आपको एपीआई लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेगा, वो डाल के आप प्रोसीड कर दोगे तो आपके पोर्टल से भी वो ई-वे बिल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग का सिनारियो है लाइक अगर सपोज हमें पर्टिकुलर किसी ई-वे बिल का एक्सटेंशन बढ़ाना है, वैलिडिटी अगर बढ़ानी है, हो सकता है ना कभी कभी, मतलब हम लोग ने मॉर्निंग में बिल या फिर गुड्स जो है वो सेंड किया है, बीच में कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ गई जिसके कारण हमारे गुड्स पहुंचने में डिले हो रहा है, बट मेरा ई-वे बिल पर्टिकुलर उसी डे के लिए अगर सपोज वैलिड रहेगा तो वो केस में आप क्या करोगे? तो फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी यहाँ पे, लाइक मेरे गुड्स आज मॉर्निंग से महाराष्ट्र टू गुजरात जाने के लिए निकले हैं। ओके, सो बाद में मुझे पता चला कि 11 बजे वहाँ पे लॉकडाउन होने वाला है रात के। सो उसके बाद कोई भी वो लोग गुड्स या फिर ट्रैवलिंग अलाउ नहीं करेंगे, सीधा मॉर्निंग ही ओपन होने वाला है लॉकडाउन, और मेरा जो ई-वे बिल है वो रात के 12 बजे तक ही अवेलेबल है। तो वो सिनारियो में क्या करूँगी मैं? तो यहाँ पे हमें सर्टन कंडीशन दिए गवर्नमेंट ने कि वो पर्टिकुलर मतलब वो जो ई-वे बिल जिस टाइम तक यानी कि उसकी वैलिडिटी जहाँ तक है उससे पहले 8 घंटे या फिर उसके बाद 8 घंटे वो पर्टिकुलर ई-वे बिल का जो एक्सटेंशन पीरियड है आप आगे बढ़ा सकते हो। तो उसे कैसे बढ़ाना रहेगा टैली से वो हम लोग देखते हैं। अगेन हम लोग जाएंगे गो टू बटन पे, ई-वे बिल रिपोर्ट, पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो इसमें से जनरेटेड हुआ जो बिल है उसका मुझे एक्सटेंशन बढ़ाना रहेगा। तो यहाँ पे मैं और एक ब्रीफिंग देना चाहूंगी। अगर सपोज आप यहाँ पे ऑल्ट F1 करते हो तो यहाँ पे ईच एंड एवरी बिल का डिटेल्स आपको अवेलेबल हो रहा है, ई-वे बिल नंबर मिल रहा है, डेट टाइम है, इवन वो वैलिड कब तक है, डेट भी मिल रही है और टाइम भी मिल रहा है। बट इससे बियॉन्ड जाके हमें उसका वैलिडिटी जो है वो बढ़ाना है, तो उसे कैसे हम लोग बढ़ाएंगे? तो राइट साइड में हमें जो कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर पर्टिकुलर किसी इनवॉइस का आपको ई-वे बिल इन्फो देखना है तो आप F6 करके वो ई-वे बिल इन्फो भी आप चेक कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है अपडेट पार्ट बी, यानी कि आपने कोई पर्टिकुलर बिल विदाउट पार्ट बी बनाया है और बाद में ट्रांसपोर्टर से डिटेल आने के बाद अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो अपडेट पार्ट बी करके आप उसे फिलअप कर सकते हो। ट्रांसपोर्टर का आईडी नहीं है, इन फ्यूचर बाद में आपको डालना रहेगा, तो यहाँ से अपडेट पे क्लिक करोगे तो वो ट्रांसपोर्ट आईडी भी अपलोड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, दैट इज एक्सटेंड ई-वे बिल। जैसे ही हम लोग एक्सटेंड ई-वे बिल पे क्लिक करेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर विंडो शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी डिटेल्स हमें अवेलेबल है ये सारे कंपलसरी हमें फिलअप करने होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिमेनिंग डिस्टेंस हमें पूछ रहा है, यानी कि जहाँ तक वो पर्टिकुलर गाड़ी आपकी वहाँ पे पहुँच गई उसके आगे कितना डिस्टेंस पेंडिंग है, वो डिस्टेंस इन किलोमीटर आप यहाँ पे डालोगे, मोड सिलेक्ट करोगे। मोड सिलेक्ट करने के लिए हमें अगेन ऑप्शन क्यों दिया है? क्योंकि कभी कभी हो सकता है ना कि आधे गुड्स जो है वो मेरे रोड के थ्रू जाएंगे और आधे रेल के थ्रू या फिर शिप के थ्रू जाएंगे, तो वैसे आप आपके हिसाब से यहाँ पे वो पर्टिकुलर मोड सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैं अभी रोड सिलेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे आपको आपका व्हीकल नंबर डालना होगा। ठीक है, देन व्हीकल टाइप रेगुलर, और जो भी एड्रेस वगैरह जो डिटेल्स रहेंगे, करंट पिन कोड, करंट प्लेस, करंट स्टेट, ये सारी चीजें जो मैंडेटरी है वो सारी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। देन नेक्स्ट लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है हमारा रीजन, कि किस रीजन की वजह से आप वो पर्टिकुलर ई-वे बिल को एक्सटेंड कर रहे हो। वो रीजन भी आपको यहाँ पे कुछ सर्टन मेंटेन करके दिया है टैली ने, लाइक नेचुरल कैलामिटीज आ गई, एक्सीडेंट हो गया या फिर व्हीकल ब्रेकडाउन हो गया, तो उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर रीजन आप सिलेक्ट करके यहाँ पे रीजन में मेंशन करके रिमार्क्स डाल के आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो जैसे आप यहाँ से एक्सेप्ट करोगे तो वो पर्टिकुलर ई-वे बिल की जो वैलिडिटी है वो चेंज हो जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगी। बट पोर्टल पे उसे अपलोड कैसे करेंगे? तो लाइक सेम जैसे हम लोग ने कैंसिल के टाइम पे किया था, अगेन हम लोग जाएंगे एक्सचेंज मेन्यू के ऊपर। एक्सचेंज मेन्यू के बाद सेंड फॉर ई-वे बिल, पीरियड सिलेक्ट कर लेंगे। सो ये मेरा पर्टिकुलर सो एंड सो बिल है जिसका मुझे एक्सटेंशन बढ़ाना है, तो मैं सेंड बटन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन मिलेगा आपको कि एक बिल के लिए आप आपका उसका जो एक्सटेंशन है वो बढ़ा रहे हो, तो येस करोगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के एंटर कर दोगे, तो पोर्टल पे भी आपका जो ई-वे बिल है पर्टिकुलर उसका वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगा। सो आई थिंक बहुत ईजी एंड
क्लियर स्टेप हमें यहाँ पे टैली प्राइम में अवेलेबल हो रहे हैं। आपको कहीं इधर उधर जाके लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किधर दूसरे प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत है। विद इन द सेम प्रोडक्ट, विद इन द टैली आप ये मल्टीपल थिंग्स इजीली मेंटेन कर सकते हो। और यहाँ पे जस्ट एक लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी जो आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सबके माइंड में वो क्वेश्चन है फिलहाल अभी। लाइक हम लोग जो GSTR1 अभी अपलोड कर रहे हैं मई मंथ से, तो हमारी फाइल अपलोड नहीं हो रही है पोर्टल पे, क्योंकि वहाँ पे HSN समरी जो है वो हमें रेट वाइज देनी है, बट उसका अपडेट अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमारा जो अपकमिंग रिलीज है ये 2.0, इसमें वो इशू सॉल्व करके दे दिया है। वो भी एक छोटा सा उसका डेमो मैं दिखा देती हूँ आपको। लाइक डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, GSTR1, HSN समरी में हम लोग आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो टैक्स रेट कॉलम उन्होंने ऐड करके दिया है। सो किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन फ्यूचर आपका GSTR1 इजीली अपलोड हो जाएगा। सो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये तो बस छोटा सा ट्रेलर था, छोटा नहीं, आई थिंक बहुत बड़ा था, बट और भी कुछ न्यू चेंजेस आने वाले हैं 2.0 में। तो मैं यही चाहूँगी कि आप हमसे कनेक्टेड रहिए और जितने भी हमारे अपकमिंग रिलीज आने वाले जो भी सेशंस है उसे आप ज्वाइन कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड मैम, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। Thank you so much Manali for this wonderful demo. Yes, altogetherly यहाँ पे हम यही बात बोलेंगे कि Tally is really flexible and wonderful software wherein you can use it in multiple ways for your multiple purpose. And the major part is that the purpose is solved with Tally software. This is what we can say. So yes, the one and the most important thing is like you are supposed to upgrade yourself to Tally Prime. That is the most important thing, because now the version has been changed and the upcoming features will completely depend onto the Tally Prime, not onto your previous version. So it's a request that everyone please upgrade yourself if you have not taken a step. Request you to connect us. We have multiple services into Tally, into conversation of Tally Prime itself. I think that will really help you to convert and use all the upcoming features as well as the new features which has been added in Tally Prime. Well, this was today's session, and let me just introduce your Mr. Bhagwati. So Mr. Bhagwati, are you here? Yeah, I'm here. So I think on to this, let us just let's just give a short recap, Mr. Bhagwati. So request you to please take ahead and give a short recap onto today's topic. Yeah. So thank you, Deepa, and good evening, everyone. I'm Bhagwati Dhandaria from Rajya Lakshmi Solutions Private Limited. So today topic is e-way bill. Actually, this is a very demanded topic in the last few months. जब से e-way bill, few years, not few months, जब से e-way bill government of India ने introduce किया in GST. So everybody want to generate the e-way bill through the Tally itself. कुछ समय पहले we already give this type of the features, small interactions and updations in the Tally, but now this is a complete package in the release 2, Tally Prime release 2. So every organization have a big challenge in terms of the time, in terms of the mistakes, in terms of the data filings. कि अभी हम यहाँ से e-way bill generate कर रहे हैं, just we are generating the invoice, then we are again going in the GSTN portals, we are logging that and again doing the they copy the data from the Tally and again put the data and again generate the invoice, again generate the e-way bills from the GSTN portal. There is a lot of time consuming error. Completely this is a big challenge कि many of the times हमने देखा है काफ़ी customers का ये challenges कि e-way bill generate करने में उन्होंने कई mistake कुछ हुआ है, like invoice details and many of the amounts details, एक zero छूट गया, there is a skip of the zero and they generate the e-way bill and they also share to the transporter and they get the different type of the penalties like that. So this type of cases also happen earlier, but now Tally ने अभी जो e-way bill लेके आया है रिलीज 2 में, e-way bill direct exchange, Tally will interact with the GSTN portal directly. जैसा हमने पहले e-invoicing में दिखाया, now this is also working with the e-way bill. So this is a very good scenario. You have no need to go in the GSTN portal. Everything you can do, your applications, Tally applications, and they zero mistakes की पोजीशन रहेगी.
You can use hassle-free, time-saving, not any mistake in that things. Second, one major changes in last few months जो हमने देखा है, last 30 years, 28 years we are working with the Tally, and last के एक साल में हमने जो बड़े changes देखे Tally में, Tally is always in the offline software. They are not interacting and exchanging with any of the portals. But now, Tally is exchanging and interacting with the GSN portal right now. तो ये एक बड़ा change है कि now Tally is open up and they are interacting with the various type of the portals. Same way, upcoming time, lot of things, lot of opportunities will come in the Tally, and that all the exchange interaction will happen throughout your applications. तो आपका काम काफी आसान होने वाला है. And second term, not only the e-way bills, आप यहाँ पर various type of the e-way bill की report आप देख पा रहे हैं और आप अपने डेटा पूरे मेंटेन कर पा रहे हैं. That data will with you longs and longs. जब तक आपके पास टैली का डेटा आप सेव रखोगे तब तक वो पूरी रिपोर्ट्स आपको आपके टैली के डेटा में ही है. You have no need to maintain outside of the Tally any Excels and documents file. So this is a big headache for the any organization. So this is a very good features, and this is a very good management like that. You can manage everything in the Tally itself. So now this time I think everybody want to use these features. So now Tally Prime Release 2 beta is available on the tallysolutions.com. आप वहाँ जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपने टैली को अपडेट कीजिए और यू एंजॉय विद दिस फीचर्स. अगर इसमें आपको कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, यू वांट टू टेक सपोर्ट फ्रॉम अस, you can contact with our help desk numbers already auto-populate in the chatbot. And अगर आपको इसमें और कोई questions हैं तो you can connect with your account manager. They are interacting with Rajlakshmi with you. और इसके अलावा आपको कोई other type of the questions हैं या queries हैं, you can contact with me. I am also available. My number is also in the chatbot. This is a big features and time saving. And again मैं बोलूँगा कि जो मिस्टेक एरर्स फ्री बोल सकते हैं, you can enjoy now, right now you can enjoy these things, and thank you very much. Thank you so much, Mr. Bhagwati, for the wonderful recap onto today's session. Yes, now it's a part of question and answer session. So if you have any question, request you to please update in the comment box. We will be updating you through a video, or we will be updating you through account manager, or even you can connect us if you have any doubts onto this. Yes, मैं आपको altogetherly यही बताऊंगी कि Rajlakshmi Solutions is working 24/7. We are into different softwares, multiple softwares, and we are into government projects, and as well as we are part of services, HR services, digital marketing services, etc. So this is the right organization where this can really uplift your business and uplift your business strategies as well. तो बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उस पे क्या करते हो, ये सवाल भी आपने हमसे किया है. तो उसके ऊपर भी हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं ताकि हम आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे दें, और उसके साथ साथ आपको ये सारी चीजें क्लियरिटी आपको अगर जानना है तो जरूर आप हमारे YouTube पेज को फॉलो कर लीजिएगा और भी सोशल मीडिया साइट्स को फॉलो कर लीजिएगा. And yes, Mr. Bhagwati, you have something to add on. Request you to please add on here. Yeah. So Deepa, last few days, many of the peoples, many of the customers, many of the calls is coming on my mobiles and on the people, all our account managers. Okay. People want to understand कि मुझे अगर टैली सीखना है और या मुझे कोई टैली मुझे आता है लेकिन मुझे कोई पर्टिकुलर फीचर जानना है तो मुझे मैं कहाँ जाऊँ. तो आई हैव ए सिंपल आंसर, एंड जस्ट यू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. एवरी फीचर का वीडियो आपको दिस टाइप ऑफ लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस इज देयर. एवरी डेमोन्स्ट्रेशंस आपको वहाँ पर मिलेगा. स्पेसिफिक फीचर वाइज आप पर्टिकुलर वीडियो को देखिए, and you can learn, and if you have any questions you can connect with our support center.
So this is a Very very true. easy Very to true. easy to use and easy to learn without any cost, without any time restriction, 24/7. Whenever you want, you can learn. Yeah. And actually I would like to add on Mr. भगवती, इसके साथ साथ जब वो YouTube में जाके कुछ अगर ट्राई करेंगे या फिर कुछ फीचर्स के ऊपर अगर वो लर्न करना चाहते हैं या फिर लर्न करने के बाद वो जब वर्क कर रहे हैं वहां पे उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो व्हेन दे गो टू YouTube चैनल, हमारे प्रोसेस और प्रोसीजर्स जो भी वहां पे हुआ देखने के बाद में भी अगर उनको कोई डाउट्स है तो वहीं पे लाइक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ YouTube itself we have given the details of contact number as well, तो वहीं पे वो हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं. This is just made to make the customer more flexible and to work with us 24/7. तो आप लोग हमें वैसे भी कनेक्ट कर सकते हो. I think this is really the right opportunity to like collaborate with us, I can say. So altogetherly, is there anything else, Mr. Bhagwati, would you like to add No, on? this is a great information. I got this from your side. Yes. Actually, I'm not aware earlier. So this is a great Yes, information it from your happens. side. We can customer can connect over there and they can get the numbers and they can connect directly. Good. Yes, we have updated all the things into description, so that is really a very good information for the clients as well. तो बस यही हम बोलेंगे कि stay connected, stay safe, and if you have any questions, do connect us. If you need any suggestions, do connect us. Business all in one. If you have anything into business, you can just connect Rajlakshmi Solutions. We are here just to serve you, support you happily. So thank you so much, everyone. Stay safe and stay confident. Thanks to the presenters here and thanks to all the spectators here. Thank you, everyone. Take care, stay safe and stay confident again. Bye-bye. Take care. Thank you, everyone.